Dear students of class 5, we are going to start unit number 1, New Oxford English book 5. We have already studied the world in a wall, words to know. So now we are going to start the first unit story. So this extract is from the autobiography My Family and Other Animals by Gerald Durrell. Durrell was an expert in studying animals. When he was 10 years old, Durrell, his older siblings, and his mother moved to Corfu in Greece to live with Durrell's grown-up brother Larry. It was here that Durrell began to collect and keep animals as pets. So this extract means ये इक़्तिबास जेरल्ड डुरल की खुद साख्ता सवाने उम्री माई फैमिली एंड अदर एनिमल्स से लिया गया है। डुरल जानवरों का मुताला करने के माहिर थे। जब इनकी उम्र 10 साल थी, when he was 10 years old, 10 साल थी, तो डुरल इनके बड़े बहन भाई, इनके भाई और इनके सिबलिंग्स, बहन भाई और वालदा डुरल के जवान भाई लैरी के साथ रहने के लिए ग्रीस यूनान के जजीरे कॉर्फू में पर मुंतकिल हो गए। एंड इस जगह डुरल ने जानवरों को इकट्ठा करना और इन्हें पालतू बनाकर रखना शुरू कर दिया। So let's start the story. The crumbling wall that surrounded the garden alongside the house was a rich hunting ground for me. It was an ancient brick wall that had been plastered over, but now this outer skin was green with moss, bulging and sagging with the damp of many winters. The whole surface was an intricate map of cracks, some several inches wide, others as fine as hairs. Here and there, large pieces had dropped off and revealed the rows of rose pink bricks lying beneath. So the crumbling walls, घर के बगल में, surrounding of the garden, along के गिर्द खड़ी खुद साख्ता दीवार मेरे लिए शिकार से भरपूर थी। रिच हंटिंग ग्राउंड फॉर मी, मेरे लिए शिकार के लिए भरपूर थी। इट वॉज एन एशियंट ब्रिक, ये ईंटों की बनी एक एशियंट मीन्स कदीम दीवार थी, जिस पर प्लास्टर्ड मीन्स प्लस्तर हुआ था, जिसका प्लस्तर किया गया था, लेकिन अब ये बाहर जल्द काई से सब्ज हो जाती। ये काई से ग्रीन यानी मोस मीन्स काई से सब्ज हो चुकी थी। कई सर्दियों की नमी के बाद सैगिंग डैम मीन्स नमी ऑफ मैनी विंटर्स, कई सर्दियों की नमी के बाद ये क्या हुई? The whole surface was an intricate map of cracks, some several inches wide, others as fine as hair. So ये जगह क्रैक्स से भरपूर थी, फूली हुई थी, ढलकती हुई थी। सारी इसकी जो दीवारें थी उसमें क्रैक्स, दरारें पड़ चुकी थीं, और ये एक इंट्रिकेट, एक पेचीदा नक्शा मैप थी।
जिसमें से बास कई इंच चौड़ी थी, कुछ वाइड थी, several inches wide, others as fine as hairs, जबकि बास बाल की तरह बारीक थी, hairs बाल की तरह बारीक थी। यहाँ वहाँ से बड़े बड़े टुकड़े गिर गए थे और नीचे मौजूद गुलाबी ईंटें नुमायां हो गई थीं। So next paragraph is, so the inhabitants of the walls were a mixed lot, and they were divided into day and night workers. They hunters and the hunted at night, the toads and the geckos. So इस दीवार के बाशिंदे मुख्तलिफ अनवा का अमेज़ा थे और दिन रात के कारकुनों, शिकारियों और शिकार होने वालों में मुनक़सिम थे। रात के वक्त मेंढक और घरेलू छिपकलियाँ the hunters, their prey was the population of stupid, absent-minded crane flies, moths of all shapes and sizes, and round beetles hurrying with their night walks. By day, it was difficult to tell the difference between the prey and the predators. Eventually, everything seems to feed off everything else. The hunting wasps scratch out caterpillars and spiders hunted for flies. The dragonflies fed off the spider and the flies, and the swift multicolored wall lizards fed off everything. So this prey was population. रात के वक्त मेंढक और घरेलू छिपकलियाँ शिकार होते और इनके शिकार बेवकूफ़ और खायब दिमाग क्रेन मक्खियाँ, तमाम शक्लों और जसामत के पतंगों और रात के इनके शिकार रात के काम में जल्दी भाग दौड़ करते मोटे ताज़े भंवरों की आबादी होती थी। दिन के वक्त शिकार और शिकारी में फ़र्क बताया। डिफरेंस बिटवीन द प्रे एंड द प्रीडेटर, शिकार और शिकारी में फ़र्क बताना मुश्किल होता था। हर चीज़ दूसरी चीज़ को खाती महसूस होती थी। द हंटिंग वास्प, शिकार भेड़ें लार्वों और मकड़ियों को खोज निकालती, मकड़ियाँ मक्खियों को शिकार करती, भंवरियाँ मकड़ियों और मक्खियों से पेट भरती और तेज़ रफ्तार ड्रैगन फ्लाइज एंड स्विफ्ट मीन्स तेज़ रफ्तार रंगीन दीवारी छिपकलियाँ हर चीज़ को खा जाती। कलर्ड वॉल लिजर्ड्स फेड ऑफ एवरीथिंग। By my favorites were the shyest members of the wall community who did not seek any attention. So they were also the most dangerous. You hardly ever saw one unless you looked for it, and yet there must have been several hundred living in the cracks of the wall. If you gently
lifted a piece of the loose plaster away from the brick there crouching beneath it would be a little black scorpion, an inch long, looking as though he were made out of polished chocolate. So, by my favorites. लेकिन मेरे पसंदीदा दीवार के आबादी के शर्मीले तरीन अरकान थे, शायद शर्मीले तरीन अरकान थे जो किसी तरह की तवज्जो के तालिब ना थे, डिड नॉट सीक एनी अटेंशन, और वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक भी थे, मोस्ट डेंजरस, जब तक आप ख़ुसूसी तौर पर तलाश न करते, इनमें से किसी को बामुश्किल ही देख पाते। एंड इसके बावजूद दीवार की दरारें ये सैकड़ों की तादाद में मौजूद रहे होंगे। अगर लिफ्टेड अ पीस ऑफ लूज प्लास्टर, अगर आप ईंट से ढले प्लास्टर का टुकड़ा नरमी से उठाते तो वहाँ इनके नीचे धपका हुआ 1 इंच भर का सियाह बिच्छू होता, देखने में ऐसा जैसे इसे पॉलिश किए हुए चॉकलेट से बनाया गया हो। They were weird looking things with their flattened oval bodies, their neat crooked legs, the innumerous crab-like claws, bulbous and neatly jointed as armor, and the tail like a string of brown beads ending in a sting like a rose thorn. The scorpion would lie there quietly as you examined him, only raising his tail as a warning sign if you breathed too hard to him. So, अपने जैसे बेजवी, oval shape means बेजवी जिस्मों यानी साफ सुथरी टांगों, बड़े बड़े केकड़े नुमा पंजों और घटीले और जर्द बख्तर के तौर पर बल्बस सफाई से जुड़े हुए और भूरे मोतियों वाले, एंड ब्राउन बीड्स भूरे मोतियों की लड़ी जैसे, एंडिंग इन अ स्ट्रिंग लाइक अ रोज थ्रोन, जैसे दुम जो गुलाब के कांटों जैसे डंक पर ख़त्म होती थी, के साथ अजीब व गरीब मखलूक नज़र आते। आपके मुआयना करने के दौरान बिच्छू खामोशी से अपनी जगह पड़ा रहता, सिर्फ इस वक्त इंतबाह के तौर पर अपनी दुम उठाता अगर आपकी सांस ज़्यादा ज़ोर से इससे टकराती। Then one day I found a fat female scorpion in the wall, wearing what at first glance appeared to be a pale fawn fur coat. Closer inspection and proved that this strange garment was made up of a mass of tiny babies clinging to the mother's back. I was enraptured by this family, and I made up my mind to smuggle them into the house and up my bedroom so that I might keep them and watch them grow up. With infinite care, I moved the mother and family into a matchbox, and then I heard it. So here it means that फिर एक रोज़, then one day, एक रोज़ मुझे दीवार की एक मोटी सी
मादा बिच्छू, फीमेल स्कॉर्पियन मादा बिच्छू मिली, कोई ऐसी चीज़ पहने हुए जो कि ऐसे नज़र आ रही थी, लुकिंग लाइक एक हल्के से खस्त्री रंग यानी ब्राउनिश कलर की कोट मालूम होता था। और करीबी मुआयने पर साबित हुआ कि ये अजीब लिबास माँ की कमर से चिमटे हुए छोटे छोटे बच्चों के हजूम पर मुश्तमिल है। इस कुंबे को देखकर मैं बहुत खुश हुआ और मैंने फ़ैसला किया कि इन्हें छुपाकर अपने घर में और बलाई मंजिल पर अपनी ख्वाबगाह में ले जाऊंगा, ताकि मैं इन्हें पाल सकूं और इन्हें बड़ा होता देख सकूं। नहायत एहतियात के साथ मैंने माँ और कुंबे को एक माचिस की डिबिया में डाला और फिर जल्दी जल्दी विला पहुंच गया। Hurried to a villa. So it was rather unfortunate that just as I entered the door, lunch should be served. However, I placed the matchbox carefully on the mantelpiece in the drawing room and made my way to the dining room and joined the family for the meal. Dawdling over my food, feeding Roger surreptitiously under the table and listening to family argues, I completely forget about my exciting new captures. At last, Larry, having finished, fetched the cigarettes from the drawing रूम। तो किस कदर बेकिस्मती की बात थी कि जिस वक्त मैं दरवाज़े में दाखिल हुआ, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती की बात थी अब कि मैं जिस वक्त दरवाज़े के अंदर दाखिल हुआ, इसी वक्त दोपहर का खाना लंच सर्व हो रहा था, खाना लगाया जाता था। और ताहम मैंने माचिस की डिबिया को एहतियात से दीवार वाले खाने में केयरफुली मैंने वहाँ पे उसको एक अंगीठी पर रख दिया और खाने के कमरे में पहुँच गया और खाने में अपने घर वालों के साथ शामिल हो गया। मेज़ के नीचे चोरी छुपे रॉजर को खिलाते हुए और घर वालों को आपस में बहस करते हुए सुनते हुए मैंने अपने हैजान खीस नए कैदियों को बिल्कुल फरामोश कर बैठा। और बल आखिर फ़ारिग होने के बाद मैं लैरी दीवान खाने से सिगरेट उठाया और अपनी कुर्सी पर दराज होते हुए इसने एक मुंह में दबाया और माचिस की डिबिया उठाई जो वो अपने साथ ही लाया था, और इस बात से बेखबर कि मेरे पुरमसरत दिन का अख्तिताम होने वाला है और मैं दिलचस्पी से अपने बड़े भाई को देखने लगा, जबकि इसने अब भी ज़ोर से बातें करते हुए माचिस की डिबिया खोली। So I end up the lesson over here. In next video we will continue the story. So read it again and learn the translation as well. Thank you.